السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من بنا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا انعام ہوا۔ اللہ پاک نے اس جگہ میں جہاں اللہ کا گھر نہیں تھا، اس جگہ میں اللہ پاک نے اپنے گھر کو قائم کرنے کے لیے اس جگہ کو کیا ہے منتخب فرمایا اللہ پاک، اور منتخب فرما کر چند مخصوص لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈال دیا۔ بیچاروں کی جدوجہد اور محنتوں اور کوششیں کیا ہے، آج کیا ہے یہ عمارت کی شکل ہمارے سامنے جو کھڑی ہوئی ہے، یہ بڑی محنتیں مجاہدے کے بعد کیا ہے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس میں محنتیں کرنے والوں کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت والی زندگی میں بھی عطا فرما، اور اس کے اندر جو جو بھائیاں حصہ لیے ہیں ان کو بھی اللہ اس دنیا اور آخرت میں اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، مسجد بنانا کیا ہے بہت ثواب کی چیز ہے۔ مسجد کے اندر کیا ہے ایک چھوٹی چیز کا بھی انتظام کرنا، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بنا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناتا ہے، جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کے گھر کی تعمیر کراتا ہے، وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، جو دنیا کے اندر اس گھر کو بنانے کی کوششیں محنتیں کر کیا ہے بنایا، اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں کیا ہے یہ گھر بناتے ہیں، جنت میں یہ گھر بناتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے دیکھو یہ گھر کے بنانے میں۔ اب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوچھے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی ہمارے میں سے ہر ایک کو بھی اتنی طاقت نہیں کہ یہ گھر بنائے۔ کئی کو بولے تو صحابہ کی حالت بہت کمزور تھی، وہ جیسا ہمیں دنیا کے بارے میں جیٹی چوڑی کا زور لگا کر دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی عادت یہ تھی کہ ایٹی چوٹی کا زور لگا کر کے ہے نیکیوں کے اندر آگے بڑھتے تھے انہوں۔ اس لیے دنیاوی حالات سے کیا ہے انہوں کمزور تھے، دنیا کی حالت مال و متے سے کیا ہے خالی تھے۔ صحابہ پوچھے اتنی طاقت ہمارے کہنے نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھے،
تو آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह का घर बन रहा है, तुम्हारे को मालूम हो गया फला जगह में मस्जिद की तामीर हो रही है, अल्लाह का घर तैयार हो रहा है, तो तुम्हारे हाथ से जितनी कोशिश होती है, तुम्हारी ताकत से जो चीज उसमें लगाना चाहते हैं तुम्हें लगा दो, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला बनाने वाले के बराबर के है सवाब देते। कितना बड़ा सवाब। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है, जिनका माल क्या है, जिनके पैसे, जिनका माल, जिनकी दौलत इस घर के अंदर लगी, वो बहुत बड़े खुश नसीब होते हैं। तो अब मस्जिद तो बन गई, अब इसमें करना क्या है हमें? असल चीज क्या है? बनाना नहीं, उसको आबाद करना असल चीज है। किससे आबाद करना? नमाज से आबाद करना, जिक्र से आबाद करना, अल्लाह के कलाम की तिलावत से क्या है आबाद करना, और अल्लाह के जिक्र से क्या है आबाद करना, हल्के लगाना, कलमे का मुज़ाकिरा, इल्म का मुज़ाकिरा, सूरत, ये सारी क्या है 24 घंटे जैसा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद के अंदर जो अमाल थे, वही चीजें क्या है मस्जिदों के अंदर क्या है हमें कायम करना, ये क्या है आबाद करना, ये असल है। तो मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मस्जिद में आकर हमें बैठकर मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं, या अल्लाह का जिक्र करते हैं, या नमाज पढ़ते हैं, तो जिस जगह नमाज पढ़ते हैं, जिस जगह अल्लाह का जिक्र करते हैं, जिस जगह कुरान पाक की तिलावत करते हैं बैठकर, वो जगह कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में गवाही देने वाली बनती है। ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा था, रोजाना तेरे घर में आता था, बैठकर क्या है इबादत करता था, तुझे याद करता था, तेरी किताब को पढ़ता था। तो ये चीजें क्या है इसके अंदर क्या है करने से, जिस जगह बैठकर करता था वो जगह, वो पत्थर, वो जानिमत सब कल क़ियामत के दिन अल्लाह के दरबार में क्या है गवाही देते हैं। मस्जिद में क्या है जहां तक हो सके पाकी और सफाई का ख्याल करना जरूरी है। आज माहौल क्या बन गया है बोले तो मस्जिद में कचरा भी पड़ा, कागज भी पड़ा, और क्या है जो गंदे, हाँ वो उधर के पत्ते भी पड़े, तो क्या है मौलाना साहब कहा है बुलाओ जी, मौलाना साहब का सवाब होना तो दूसरे को लगो मजा। अरे तुम्हारी निगाह में पड़ा है तो वो निगाह में पढ़ने के बाद क्या है निकाल कर बाहर फेंको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में अज़ान से पहले ये काली कलोटी हबशा किस्म की रहने वाली औरत आती थी, आकर क्या है रोजाना क्या है मस्जिद की सफाई करको जाती थी, पाक साफ करको चली जाती थी। उसके बाद क्या है अज़ान होती थी, लोग आते थे। एक मर्तबा 2 दिन 1 दिन पहले देखे तो क्या है वो औरत नजर नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरात सहाबा से पूछे, अरे भाई फला औरत क्या है मस्जिद में आती थी, रोजाना सफाई कर कर जाती थी, वो औरत कहाँ नजर नहीं आ रही है? तो सहाबा बोले अल्लाह के नबी उसका इंतकाल हो गया, उसकी तजवीज व तकसीम क्या है हमें कर डाले सब मिलकर। अरे मुझे क्यों इत्तला नहीं मिली? तो सहाबा बोले ये तो मामूली किस्म की औरत थी, आपको क्यों तकरीब बोलकर हमें इत्तला नहीं दी? तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये देखने में लोगों की निगाह में काली कलोटी कमजोर मालूम होती थी, लेकिन अल्लाह के निगाह में क्या है बहुत महबूब बंदी थी अल्लाह की। चलो मुझे उसकी खबर बताओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके हक में क्या है दुआ करें। तो इसलिए मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी निगाह में मस्जिद की क्या है पाकी सफाई का ख्याल रखना। अगर निगाह पड़ गई तो कचरा रहा, कूड़ा रहा, कागज का टुकड़ा रहा, निकाल कर क्या है बाहर फेंकना, ये हमारे लिए क्या है बाई से बरकत है, सवाब है। अल्लाह के घर को जितना पाक रखती, एक अल्लाह वाले
हजरत तशरीफ लाए हैं करने से हजरत का इंतजार था। हजरत आने तक क्या है 10-5 मिनट के लिए बैठने को लिए कहा गया मुझे। इंशाअल्लाह मुख्तसर सी बात में क्या है बात को खत्म करेंगे। तो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, मस्जिद की सफाई करने के बाद उसके अंदर धूल निकलती नहीं, वो धूल क्या है बाहर नहीं फेंकते थे हजरत, पूरी धूल को क्या है अपने अमामे में क्या है डाल को रख लेते थे। अल्लाह का घर पाक है, उसमें रहने वाली चीज भी पाक है। ऐसी मोहब्बत थी देखो जिनके अंदर। इसलिए अल्लाह का घर तो अल्लाह के फजल और करम से क्या है बन गया है। इसको आबाद करना, इसे क्या है हमें क्या है इसको आबाद करने की फिक्रें करना है। फिक्रें कर कर क्या है महलों में अतनाफ अकनाफ में क्या है गश्तों के जरिए से दावत के जरिए से क्या है ये हमें क्या है मस्जिदें क्या है हमारे आबाद हो रहे हैं। तो इसकी करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह जब मस्जिद आबाद होती है तो हमारे घरां भी आबाद रहती, हमें भी क्या है आबाद रहती। जब मस्जिद वीरान हो जाती है तो हमें भी बर्बाद क्या है होती है। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, अल्लाह मुझे भी आपको भी सबको भी कहने सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अदा फरमा। फिर एक मर्तबा मैं इस मस्जिद के सिलसिले में जो मेहनतें कोशिशें किए हैं, खास कर क्या है हमारे अब्दुल सलाम खान भाई, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। और इस मस्जिद के लिए जो जगह वगैरह का इंतजाम किए हैं मोहम्मद वली मरहूम, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। अल्लाह उनको ऐसा जैसा दुनिया के अंदर अल्लाह के घर की फिक्र करते थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और इसी तरह हमारे दूसरे साथिया में बहुत सारे इसमें हिस्सा लिए रहेंगे, ये तो तफसील मालूम नहीं। तो बहरहाल अल्लाह उन सबको भी क्या है इसका बदला दुनिया में भी अता फरमा, आखिरत वाली जिंदगी में भी अता फरमा। व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल